Hello everyone, my name is Deepak Misra and welcome to my YouTube channel. In this video, we will solve the questions of the wild swans at a cool, a poem composed by William Butler Yeats. You know that we have tried to understand the poem and discussed the summary in my previous videos. So now start. The first, choose the correct options to complete the sentences. The trees are in their dash beauty. We know that the trees are in their autumn beauty. According to the poem, autumn beauty. Next, the swans fluttered their wings. So their wings were clamorous, noisy. It was clamorous wings. The first time the poet heard the swans at daybreak, twilight, noon, dawn, dusk, dawn. So our answer is the first time the poet heard the swans at twilight. Next, the swan drift on the water. We read the poem and found that the swans were drifting on the brimming water. So clear, muddy, and still. Not proper answer. Brimming water, safe water. We see B number question. Tick the correct statement and the incorrect ones. यानी हमें टिक करना है सही टिक. The paths in the woodland are muddy. गलत है क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि वे ड्राई थे. The paths were dry because it was the time of autumn in October. There were 59 swans in the lake. सही है. The swans walked with a heavy pace. गलत. काफी धीमी गति थी. The swans' hearts have not gone old. सही. अब आइए आगे देखते हैं. इसे मिलाना है यानी मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर राइमिंग वर्ड्स. जो तुकबंदी वाले शब्द हैं उन्हें मिलाना है. खुद चेक कर लें. काउंट, ड्राई, कॉल्ड, हेड. तो इसका उच्चारण किस तरह से हो रहा है, इससे मेल खाता हुआ उच्चारण कौन सा है. काउंट. ऑल्ड, माउंट, ट्रेड, स्काई. काउंट, माउंट, ड्राई, स्काई, कॉल्ड, ऑल्ड, हेड, ट्रेड. आप खुद मिला लें. Answer each questions in 35 to 40 words. Where were the swans when the poet saw them? इसका सीधा और सरल आंसर है स्वांस. हंसों को कहाँ देखा था कवि ने. तो when were the swans, तो सीधा आप लिख सकते हैं the swans were in the lake. लेकिन थोड़ा सा शब्द बढ़ाने के लिए लिख दिया the swans were floating on the lake situated in the woods. यानी उस लेक में जो कि जंगल में स्थित था. when the poet saw them, जब कवि ने उन्हें देखा. the poet saw 59 swans while he was on an evening walk. उस दौरान जब वह अपने इवनिंग वॉक में थे. आंसर है आंसर आप अपने शब्दों में दें. कोई जरूरी नहीं कि यह जो लिखा है वही. बस मैंने सिर्फ
समझाने के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है। सो है कि वह हंस तालाब में तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे उस तालाब में, उस लेक में, झील में, जो कि जंगल में स्थित था। और कब, जब पोइट ने इन्हें देखा, और उस समय 59 स्वान्स थे। और कब देखा? जब पोइट अपने इवनिंग वॉक में थे। For how many years had the poet been visiting the lake is the second number question, and the answer of this question is, हम जानते हैं कि वो पिछले 19 वर्षों से आ रहा था, आता आ रहा था उस लेक में। तो कुछ नहीं करना, बस had been the poet had been visiting the lake for the past 19 years। आप चाहे तो इस शब्दों को और बढ़ा सकते हैं, और इसे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कवि और कविता और कवि का नाम जोड़ देना है, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द स्वान्स मूव? कैसे चलता है, कैसे चलता है? द स्वान्स मूव्ड टुगेदर। लोगों ने देखा था कि जो स्वान है वह एक साथ चलते हैं, या तो भले ही वह आकाश में जाए, पानी में जाए, जहां जाए, लेकिन अपने कंपेनियन के साथ चलते हैं। द स्वान मूव टुगेदर whether up in the air or drifting in the cold water of the lake. They flew in circles in the air. Question: how do the swans paddle in the lake? आंसर है the swans paddle in the water of the lake in pairs. अब ये जो क्वेश्चन है इनको 50 से 60 वर्ड्स में देना है जवाब। What does the reflect and when is the seen? लेक का पानी जो वाटर है वह क्या रिफ्लेक्ट करता है और इसे कब देखा गया? शायद कोई वर्ड छूट गया, आप अपना क्वेश्चन का आंसर किताब में क्वेश्चन देख लें। ठीक है, व्हाट डज द रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्ट करता है और यह कब देखा गया? The clear water of the lake reflects the still and the motionless sky in the twilight of the autumn। जो क्लियर और स्वच्छ वाटर है, पानी है लेक का, वही रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब बनाता है आकाश का। आकाश कैसा है? मोशनलेस और शांत। कब? इन द ट्वाइलाइट ऑफ ऑटम। द पोइट सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन द लेक ड्यूरिंग हिज इवनिंग वॉक। और पोइट यह तब देखता है, इस रिफ्लेक्शन को तब देखता है, प्रतिबिंब को, जब वह अपने इवनिंग वॉक के दौरान होता है। सो द क्लियर वाटर ऑफ द लेक रिफ्लेक्ट्स द स्टिल एंड मोशनलेस स्काई इन द ट्वाइलाइट ऑफ ऑटम। द पोइट सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन द लेक ड्यूरिंग हिज इवनिंग वॉक। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोइट हियर एट ट्वाइलाइट? मतलब कवि ने क्या देखा, क्या सुना वहां पे? हम सभी जानते हैं कि जब वह गिन ही रहा था, वह गिनती पूरी करता, इससे पहले ही सब हंस अचानक ऊपर उड़ जाते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते हैं, और उन्हीं पंखों का फड़फड़ाना कवि सुनता है। सो द आंसर इज द पोइट had first heard the flapping of the swan wings above his head at twilight in October। क्योंकि वह ऑटम में गया था और ऑटम अक्टूबर में था। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। नेक्स्ट, नेम द प्लेसेस वेयर द स्वान्स बिल्ड देयर नेस्ट्स। वह जगह जहाँ बिल्ड करेंगे स्वान। हम लोगों ने पढ़ा था रसेज, जो कि एक प्रकार का पौधा है, जलीय पौधा, उसी में बनाते हैं। मतलब स्वभाव से, वह स्वभावतः बनाते हैं। देखिए आंसर क्या है। स्वान्स टिपिकली बिल्ड देयर नेस्ट अमंग द रसेज which grow along a lake of water। The poet says that no one knows where these beautiful creatures will build their nests। सामान्यतः स्वान कहाँ बनाते हैं? रसेज में बनाते हैं अपने घोंसले, नेस्ट, और जो कि पानी में ही होता है, वो लेक ऑफ वाटर। द पोइट सेज
पोइट कवि कवि कहता है कि कोई नहीं जानता, दैट नो वन नोज वेयर दिस ब्यूटीफुल क्रीचर्स, जहाँ ये सुंदर जो जंतु हैं वह अपने घोंसले बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, answer each question in 60-80 words. What did the poet see when he first counted the swan? पहली बार जब कवि काउंट कर रहा था तो उन्होंने क्या देखा, उसने क्या देखा? The first time when the poet was counting the swans, they flew away before he could finish counting. They flew above his head, moving in circles, and then scattered away, noisily flapping their wings. पहली बार जब कवि गिनती कर रहा था श्वांस का, तो भी श्वांस क्या है, अचानक उड़ जाते हैं गिनती करने से पहले ही, और वे उसके सर के ऊपर से मूव करते हुए जाते हैं और उनके पंखों की फड़फड़ाहट वह सुनता है कवि। The first time when the poet was counting the swans, they flew away before he could finish counting. They flew above his head, moving in circles, and then scattered away, noisily flapping their wings. When and where did the poet see the swans for the first time? कब और कहाँ कवि ने पहली बार इन हंसों को देखा? हम सभी जानते हैं कि पहली बार कवि ने इन हंसों को उसी लेक में देखा जहाँ वह दोबारा देख रहा है, क्योंकि वह उसी लेक में पिछले 19 वर्षों से विजिट करता रहा है। So the answer is, the poet saw 59 swans floating on the lake. He saw the swans when he was on his evening walk. It was in autumn, in the month of October, when the poet saw those beautiful and fascinating creatures. Which scene delights men's eyes? मतलब कौन सा दृश्य है जो डिलाइट करता है, डिलाइट देता है? The sight of the beautiful, fascinating swans drifting on the water is enough to delight any man's eyes. ठीक उसी तरह जिस तरह कवि को मिल रहा है, कैसा साइट? ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग swans drifting on the water. आइए देखते हैं सेकेंड लाइन आंसर का। The swans have proven to be a source of beauty and joy in the poet's life. The poet is sure that these beautiful creatures can bring happiness and delight in any man's life. Okay. तो ये हर तरह के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने जैसे विद्यार्थियों के बीच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।